नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो रिसेंटली यूएस में वेस्ट वर्जीनिया के एक सेनेटर है, उसने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उसने बताया कि उनका यानी कि यूएस टैक्स पेयर मनी में से जो फंड इकट्ठा होता है यूएस गवर्नमेंट के पास, वो फंड एक एनजीओ को दिया गया था जो एक एनवायरमेंट के नाम पर फंडिंग ले रहा था। उसके पश्चात जब इन लोगों ने रिसर्च किया, जब स्टडी किया उस एनजीओ को कि कहां पर वो लोग पैसा यूज कर रहे हैं, किस तरह से उसको यूज किया जा रहा है, क्या स्कीम्स इंप्लीमेंट की जा रही हैं, क्या प्रोजेक्ट्स किए जा रहे हैं, तब ये पता चला कि वो जो एनवायरमेंट ग्रुप था वो बेसिकली पैलेस्टाइन का प्रोपोगेंडा अपनी वेबसाइट के ऊपर भी चला रहा। सुनिए वो स्पीच। Well, I wanted to bring to everybody's attention something that doesn't get much attention, and you've heard the term follow the money. So I looked up where did Follow the Money, I thought it was from a Tom Cruise movie, but it wasn't. It was from Watergate. And Follow the Money is what they did in Watergate, and we saw what happened. So my young staffer, who's very bright, and I see him over there, Adam Pack, followed the money. And the money is from the so-called Inflation Reduction Act. So in the name of green and environmental justice, there's over $40 billion that are going to be granted out through the EPA. So, with this great research that was done, what was discovered that in December, the EPA granted $50 million to an organization called Climate Justice Alliance. So we went to the website of Climate Justice Alliance. This is what we found on the website, that our taxpayer dollars are going to organizations such as this. This, at the bottom, is a picture of the bulldozer that went through the fence when Hamas attacked Israel on October the 7th. They have a rendering on their website. It says decolonize Palestine, and it has a picture of that same bulldozer going through that fence. If you dig deeper, they want to defund the police, defund the military, either them or their affiliates want to have very radical, drastic initiatives that I think are anti-American. And they're certainly anti-Israel and anti-Semitic. So the Biden administration doesn't seem to care. $50 million in December. Who knows how much more in the future, and other like groups, because there are other associated groups with this group. There's no Inspector General for EPA to follow the money because they don't care. Because all they care about is the mission, the climate mission, no matter what the radical ideas that are associated with the groups. So then you could ask yourself, is this group really going to be funding climate, cleaning up the water and cleaning up the soil and cleaning up the air? Or are they going to be funding things like the protests they had in Hart just several weeks ago, where several of them were arrested? तो जैसा कि आपने देखा कि ये जो एनजीओ का कल्चर है, एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने हिसाब से वर्क करती है अलग अलग देशों में, सभी देशों में। इंडिया में भी कई सारे एनजीओ हैं, आपके सिटी में भी कई सारे एनजीओ होंगे जो अलग अलग प्रकार के काम करते होंगे। अब हर एक एनजीओ का अपना एक एजेंडा होता है। अगर आपको भी कोई एनजीओ ओपन करना है, कोई सोशल वर्क करना है, तो आप एनजीओ ओपन कर सकते हैं। कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, बहुत सारी प्रोसेसेस हैं। तो एक आम इंसान को एक एनजीओ ओपन करने के लिए बहुत सारी प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है और उसके लिए उसको बहुत सारी फंडिंग भी चाहिए होती है और साथ ही में बैक एंड सपोर्ट भी चाहिए होता है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक एनजीओ हैं, सिर्फ यूएस में ही नहीं, भारत में, जिसमें से 2-3 एनजीओ काफी ही फेमस हैं जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, रिसेंटली चर्चा में भी हैं। एक है अपना कबीर, दूसरा है परिवर्तन, जिसमें से निकलकर ये मैंगोमैन पार्टी बनी इंडिया अगेंस्ट करप्शन के प्रोटेस्ट के बाद। तो उनकी भी क्या परिस्थिति है ये भी हम सबको पता है। किस तरह के घोटालों के आक्षेप उन लोगों पर लग रहे हैं उसकी भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को रेगुलर बेसिस पर मिल रही है। तो इसी प्रकार से ऐसे कई सारे एनजीओ हैं इंडिया में भी, जिनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनको ब्लैक लिस्ट भी कर दिया गया है। अब इनमें से ज्यादातर वो एनजीओ हैं जो बाहर से आए हैं या फिर जिनके ट्रस्टीज बाहर बैठे हैं। उसमें से कई सारे एनजीओ ऐसे हैं जो नाम भले ही इंडियन रखें, उसको एक हिंदू नाम भले ही दिया जाए,
चाहे वो बाबा साहेब के नाम पर दिया जाए, चाहे वो गांधी जी के नाम पर दिया जाए, चाहे वो किसी भी इंडियन पर्सनालिटी के नाम पर या किसी भी कम्युनिटी या कास्ट के नाम पर दिया जाए, फिर वे लोग जो काम करते हैं उसके पीछे वो भारत तोड़ने का काम करते हैं और जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज हैं उसमें संलिप्त पाए जाते हैं। ऐसे कई सारे एनजीओ हैं जिनको भारत की सोशल एंड वेलफेयर मिनिस्ट्री जो है उन्होंने ब्लैकलिस्ट भी कर दिया है। उनका पूरा लिस्ट मिनिस्ट्री के वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो हमारा आप सभी से निवेदन है कि अगर आपके पास ऐसा कोई भी एनजीओ आता है रिक्वेस्ट करने के, तो उसकी पूरी जांच पड़ताल करें। कोई भी कदम लेने से पहले या फिर एक भी रुपया देने से पहले उसकी जांच पड़ताल करें और पूरी डिटेल्स निकालने के बाद ही उन लोगों को किसी भी प्रकार का सपोर्ट दें, अगर आप श्योर हैं तो। अदरवाइज ऐसी कई सारी एक्टिविटीज आप खुद कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर, अपने फैमिली के साथ मिलकर। जैसे गौतम गंभीर ने भी दिल्ली में अपना जो एरिया है उसमें किया है, जिसमें 1 रुपया लेकर वो लोगों को लंच प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस प्रकार के कई सारे इनिशिएटिव्स आप अपने आप भी ले सकते हैं। आपको ये खबर कैसी लगी ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे कई सारे एनजीओ हैं, आपके एरिया में कौन कौन से एनजीओ एक्टिव है या आप ऐसी कोई भी सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं जो आप खुद कर रहे हैं किसी भी एनजीओ से जुड़े बिना, वो हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।